لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے تقریر کا عنوان ہے انسان اپنا مقام بلند بھول گیا. آج کا سماج کوتاہیوں کا سماج ہے. آج کا معاشرہ برائیوں کا معاشرہ ہے. آج کی سوسائٹی انجام سے بے خبر اور نتائج سے غافل سوسائٹی ہے. یہ کوتاہیاں علم کی بھی ہے اور عمل کی بھی، یعنی انسانی کرتوت اور اعمال کی وجہ سے. دنیا فساد سے بھر گئی ہے. خشکی وطری ہر جگہ بگاڑ ہی بگاڑ چھا گئی ہے. اس کی گانٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ دنیا پرستی ہے. زہر کی پھڑیا اگر کوئی چیز ہے تو دنیا کی محبت ہے. بدیوں کی ماں اگر کوئی چیز ہے تو وہ سب بے دنیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. دنیا کے طالب بالکل کافر ہے کیونکہ وہ رات دن انام شناخت میں لگے رہتے ہیں. نہ خدا کا دھیان، نہ آخرت کا خیال، نہ خوشنودی رب کی فکر، نہ باتوں پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ. ان کا مشغلہ برسر زمین ہے. ان کی زندگی روٹی کپڑا اور مکان کے لیے وقت ہے. وہ قوم ملک کے گرویدے ہیں، نسل و نسب کے دلزادے ہیں، پیشے زبان کے پردے ہیں تو برادر خاندان کے عاشق ہیں. کھانے پینے کے رسیاں ہیں تو کمانے خرچ کرنے کے غلام ہیں. مولانا روم صرف صوفی نہیں بلکہ وہ ایک عالم دین بھی تھے. انہیں خود ایک خیال ہوا کہ میں نے طالبان دنیا کو مطلب کافر کر دیا. کہیں یہ لوگ دنیا کو چھوڑ کر دونوں اور گوشے میں نہ جا بیٹھے. قوم ملک کو چھوڑ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا نہ کرے. انسانی آبادی کو چھوڑ کر جنگل کی جھاڑیوں کو ٹھکانہ نہ بنا لے. اگر ایسا ہوا تو منشائے خدا بند کے خلاف ہوا. چنانچہ فرمایا دنیا خدا سے غفلت کا نام ہے. سامان، زندگی، سونا، چاندی، بیوی، بچے، ان سب کا نام دنیا نہیں ہے. علم کی ایک گمراہی تو یہ ہے کہ انسان اور کائنات کو ایک اتفاقی حادثہ فرض کر دیا گیا ہے. حالانکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، تنکا تنکا اور جس انسانی کارواں اب زبان حال سے یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ حکمتوں سے بھرپور، دانائیوں سے مغرور، عقل و حکمت سے لبریز کائنات اتفاقی حادثہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ بڑی بڑی علمی کوتاہیاں جن میں عوام ہی نہیں بلکہ خواص بھی مطلع ہے. بے پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں بلکہ دانائی دانشوری کے دعوے دار بھی علمی کوتاہیوں کے شکار ہیں. اور جن علمی کوتاہیوں کے یہ شکار ہیں جس کی وجہ سے بے شمار علمی کوتاہیاں جنم لے رہی ہے. جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. آج مسلمان گھروں کے لڑکے اور لڑکیاں ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتے ہیں اور دنیا ان کے حسن کا منظر دیکھتے ہیں. آج مسلمان گھروں کے لڑکے اور لڑکیاں کالج کے فنکشن میں ڈانس کرتے ہیں اور جب انہیں منع کرو کہ ایسا تم نہ کرو نہیں تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو کہتے ہیں کہ تم کس دور کا بات کر رہی ہو، تھوڑا ماڈرن بنو. اگر تمہاری بات سچ ہے تو پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اچھا دیکھو گے؟ کیا دیکھو گے اور کس معاملے میں کہتے ہو کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا؟ کیا قبر میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا؟ جب تمہارے جنازے کو دنیا سے لے جایا جا رہا ہوگا تب دیکھا جائے گا. جب اللہ رب العالمین تمہاری قبر میں آگ، سانپ اور بچھو کو نازل کریں گے تو کیا تب دیکھا جائے گا؟ جس حسن کو تم پھیلاتے ہو دنیا بھر میں بے پردگی کے ساتھ، جب اسے حسین و جمیل چہرے پر اللہ رب العالمین سانپ بچھو کو نازل کریں گے تو کیا تب دیکھا جائے گا؟ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پر تجھ کو ناز ہے. انسان کھڑا ہو کر دیکھے گا کہ لوگ پلسرات سے کر کے جہنم کے اندر گر رہے ہیں. جہنم کے اندر وہ چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے. ابھی اس کی باری آئی نہیں ہے. وہ دردناک چیخو پکار کی آواز سن کر اب اسے اپنا سارا معاملات یاد آئے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا.
अभी उसके बारे नहीं गई गुजरने की, अब उसे याद आ रहा है कि मैंने दुनिया में रहकर क्या क्या किया। वो सोच पे पड़ जाएगा और कहेगा कि मैं इस पुलिसरात से कैसे गुजरूं जिस पुलिसरात से होकर के जहन्नम के अंदर गई। उस दिन इंसान जाएगा बाप के पास, कहेगा ऐ अब्बा जान, मेरी कुछ नेकियां कब पड़ रही है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जहन्नम में डाल देगा। ऐ अब्बा जान, मुझे आप अपनी कुछ नेकियां दे दीजिए ताकि अल्लाह मुझे जहन्नम में डाले। तो बाप क्या कहता है कि ऐ बेटे, मैं तेरी दुनिया में हर जरूरतों को पूरा करता था। तूने दुनिया में गाड़ी मांगा, मैंने तुझे दुनिया में गाड़ी दिया। तूने दुनिया में पैसा मांगा, मैंने तुझे दुनिया में पैसा दिया। तूने दुनिया में कपड़ा मांगा, मैंने तुझे कपड़ा दिया। लेकिन ऐ बेटे, मैं तेरे सिर्फ दुनिया में काम आ सकता हूँ, यहाँ मैं तेरे कुछ काम नहीं आ सकता। इधर उधर इंसान भागेगा लेकिन नेकी नामी नहीं होगी। माँ बेटे से भागेगी, बेटा बाप से भागेगा। फिर क्यों कहते हो कि जो होगा वो देखा जाएगा। मजाक बनाया हुआ है जीने को। अरे मरने के लिए जियो, लेकिन तुम तो जीने के लिए जीते हो। अगर किसी इंसान को एक बंद कमरे में जिसमें धुआं हो बंद कर दिया जाए तो क्या वो धुएं को बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं। तो फिर सोचो, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कब्र में आग नाज़िल करेगा तो तुम उससे कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? आखिरत को भूलकर अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों, जरा बताओ कब्र की उस तारीख वादी में तुम्हारे कौन काम आएगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में इंसान के मुख्तलिफ दोस्त होते हैं। इंसान का दोस्त माल है, इंसान का दोस्त अहबाब है, इंसान का दोस्त औलाद है, इंसान का दोस्त अमाल है। माल का हाल ये दो कि जैसे ही इंसान के जिस्म से रूह निकलती है, तैसे ही माल पराया हो जाता है, वारिसों का हो जाता है। और दोस्तों का हाल ये कि जैसे ही तुम्हें कब्र के पास लाया और छोड़कर ऐसे चले गए कि जैसे तुम्हें जानते ही ना। हाँ इंसान, तूने किन लोगों से दिल लगाया? पहले तो उस माल से दिल लगाया जो कब्र तक आने वाला था, अहबाब से दिल लगाया जो कब्र पर छोड़कर चले जाने वाले थे। तूने उस सामान पर मेहनत क्या की? तूने उस सामान के लिए किया क्या? तूने उस सामान पर कोशिश क्या की? मस्जिद नहीं आता था, और आता था तो हाल ये कि जैसा लगे कि कोई डंडे बरसा रहा हो। जुमा के दिन आखिर में आकर के 2 रकात पढ़ के भाग जाने वालों, जरा सोचो। ऐसे लोग जब मर के जाएंगे ना तो कब्र उन्हें दबाएगी, जिससे उनकी पिस्मियां आपस में मिल जाएंगी। बिजली पर अगर थोड़ी सी मार पड़ती है तो हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। तो जरा सोचो कि जब कब्र उस वक्त तुम्हें दबाएगी तो तुम्हारा उस वक्त क्या हश्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी, तो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके कब्र में 99 सांप को मुसल्लत करेगा। और जिसमें से एक सांप की ताकत का आलम यह है कि अगर वो किसी पहाड़ पर डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अगर वो दुनिया में फूंकार मार दे तो उसकी फुकार की गर्मी से दुनिया के इंसान मर जाए। ऐसे 99 सांप उस पर मुसल्लत किए जाएंगे। फिर फरिश्ता भेजा जाएगा जो आंख से देखता नहीं, कान से सुनता नहीं, जुबान से बोलता नहीं, गूंगा बहरा फरिश्ता उसके पास भेजा जाएगा। और नमाज छोड़ने की वजह से नमाज छोड़ने की वजह से एक गुर्दा उसके वजूद पर मारेगा, जिससे वो पिस जाएगा, जैसे चने पर हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है। मेरे बहन, तुम्हारे घरों में इंसान दुनिया में जिन जिन चीजों से डरता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन चीजों को उसके कब्र में भेजेगा। मिसाल के तौर पर कुत्ते से डरता था तो कुत्ता उसके कब्र में भेजा जाएगा जो उसे डराएगा। बिल्ली से डरता था तो बिल्ली भेजा जाएगा। चिपकिली से डरता था तो चिपकिली को भेजा जाएगा। तो मिसाल अगर हम किसी गली में खड़े हैं और कुत्ता आ जाए तो हम बड़े दूर भागते
भागते हैं। तो जरा सोचो, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र में इन तमाम चीजों को नाजिल करेगा तो तुम कहाँ भाग के जाओगे? चीखोगे, आवाज कहाँ तक जाएगी? चिल्लाओगे, आवाज कहाँ तक जाएगी? ऐ इंसान, तू कितना नादान है। अल्लाह ने तुझे मोहम्मद रसूल जैसा नबी भेजा, अल्लाह ने तुझे कुरान मुक़द्दस जैसी किताब अता की, लेकिन तूने दुनिया 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 और दुनिया की मौज और मस्ती में अपना वक्त ऐसे ज़ाया कर दिया कि तूने कब्र की कोई परवाह न की, तूने आखिरत की कोई परवाह न की। तुम्हारे घरों की ये जो इम्तीनें लगी है ना, ये इम्तीनें नहीं, ये क़यामत की निशानी है, ये जहन्नम की निशानी है। तुम्हारे घरों की रंगीन टीवियां जो तुम्हारे घरों की रंगीन टीवियां जो तुम्हें डिश लगाने पर मजबूर करती है, तुम्हारे औलाद जो तुम्हें मजबूर करते हैं डिश लगाने पर, ये सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे औलाद को भी जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए राह जहन्नम तक ले जाते हैं। आज समाज का इलाज कैसे किया जाए? सोसाइटी से होने वाली बुराइयों को कैसे खत्म किया जाए? क्या समाज सुधर रहा है? नहीं, बल्कि बुराई बढ़ रही है और नेकियां कम होती जा रही है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की बुराई करने में, एक दूसरे के दरमियान जुदाई पैदा करने में परेशान है। एक भाई तरक्की करता है तो दूसरे भाई को बर्दाश्त नहीं होता। एक खानदान दूसरे खानदान से परेशान है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से परेशान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जो अगर एक मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचे तो दूसरे मुसलमान भाई तकलीफ पहुंचे तो दूसरे मुसलमान को उसका एहसास होगा। हम दिन में पता नहीं कितनी मरतबा झूठ बोलते हैं, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जिंदगी में सिर्फ 3 मरतबा झूठ बोले थे, जिसकी वजह से वो क़यामत के दिन परेशान होंगे कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज होकर मुझे जहन्नम में ना डाल दे। आज नौजवानों को दीन से दूर देखकर आंख रश्कबार हो जाती है। कुछ नौजवान ऐसे हैं जो सूरह फातिहा से महरूम हैं। बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है, लेकिन बेटे को जनाजे की दुआ मालूम नहीं कि उसका जनाजा पढ़ा दे, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। आप 10-12 साल के छोटे बच्चे नशा आवर चीजों में मुब्तला हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वालिदैन है। वालिदैन अपने बच्चे को दीन से दूर कर देते हैं। बैठा रहा, अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना पसंद करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाना वो पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होकर उनकी नाफरमानी करने लगता है तो फिर जाते हैं, कहते हैं कि फिर तावीज़ बनाने लगते हैं कि दुआ कर दीजिए, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। अब आखिरी में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों को जो यहाँ मौजूद हैं सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें कब्र की अजाब से बचाए और हमें वालिदैन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।